Okay, now substituting the another value, that is minus 2 over here, and see, I am getting the point, that is 49. So I write that 49. What are they? They are the critical points. Okay, in critical points पे क्या होता है? They can be relative maxima, they can be relative minima. सो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है. इसके बाद जो आपने काम करना है, अब क्योंकि हमें प्लॉटिंग करनी है, हमें स्केचिंग करनी है, तो साथ साथ हम वो काम करते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे, हमें एक साथ बहुत ढेर सारे पॉइंट्स प्लॉटिंग ना करने, प्लॉट डाउन ना करने पड़े. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, व्हाट आई एम सीइंग, डूइंग दैट हेयर, आई एम plotting all these points, these intercepts, this critical points, all these points on my graph. So the first point is 0, 5. This will be somewhere here, 0, 5. Then I have minus 3.637. So मुझे एग्जैक्ट वाली प्लॉट डाउन नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो होगा नहीं जहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी अवेलेबल हों. सो दिस कैन बी समवेयर हियर इन द नेगेटिव साइड, minus 3.63 and 0. Then I will have 0.1374. 0.1374 somewhere is here, बहुत 0 के बहुत करीब तरीन होगा. Then I have 5, 0, which will be bit far from this, so this will be 5, 0. So these are the points from which my graph is always pass. Then I have these critical points. I have to plot these critical points, that is 3 and minus 76. 3 is positive, which will be somewhere here, and I have minus 76, which will be somewhere down below, that is 3, minus 76. Okay, next I have the point, that is minus 2, 49. Minus 2 somewhere here, and 49 must be far away from here. That will be just this minus 2, 49. Okay, we will get back to this graph after we find out that what is the behavior of these critical points. The critical points are minus 3 and minus 76 and minus 2 and 49. Okay, so now हमें अब क्या करना है, वो जो critical points फाइंड करे थे उनका behavior चेक करना है. So that will be my step 3. Find the behavior of critical points. So for that, I can apply the first derivative test, I can apply the second derivative test. Since the function is polynomial, it is easy to apply the second derivative test. So I am applying the second derivative test, f double prime x, that will be 12x minus 6. So for max-min, I have to substitute my critical points over here. f double prime x के बजाय I can write, so for the point x equals to 3, f double prime 3, I can find f double prime 3. 12 into 3 is 36. 36 minus 6 is 30. So since you know that we only need the sign of the term, so since it is positive, this means 3 is, x is equals to 3 is minima. Okay, and for x is equals to minus 2, f double prime minus 2 is equals to, substituting it over here, 12 into minus 2 is minus 24. Minus 24 minus 6 is minus 30, which is negative. Means at x is equals to minus 2, there is maxima. Okay, another thing you can see here, that x is equals to 3 positive,
दिस विल बी कॉन्केव अप में क्या होता है, मिनिमा होता है. एंड एफ प्राइम डबल प्राइम -2 इज़ नेगेटिव मीन्स कॉन्केव डाउन, एंड कॉन्केव डाउन में क्या होता है, मैक्सिमा होता है. मीन्स के मिनिमा मीन्स पॉजिटिव इज़ कॉन्केव अप, ठीक, एंड नेगेटिव इज़ कॉन्केव down. So in my graph what I can substitute over here, that these points, this point that is -2, 49 which is has concave down, so the graph will be like this. ठीक, ये आपने एक जनरल बना लेना है. Then at x equals to 3, this is minima positive, this means concave up. So at 3 what will you do, you will do this as this thing. ओके, एज यू कैन सी कि ये कॉन्केविटी तो चेंज हो रही है. इस पॉइंट पे कॉन्केव डाउन है, इस पॉइंट पे कॉन्केव अप है. सो देयर विल बी सम इन्फ्लेक्शन पॉइंट टू. सो आई हैव अनदर स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 4, इन्फ्लेक्शन पॉइंट. Okay, what is inflection point where f double prime x is equals to 0? I have the value of f double prime x, that is 12x minus 6 equals to 0, and that will be 6x is equals to half. Again half, 0.5, whatever you will say it. Again I have to substitute this value in my function, so I will get this value, and I am substituting this 0.5, and see I am getting this value, that is -27.2, that will be -13.5. so since I need to plot this, so I will convert it into the decimal form. So the point is 0.5 comma -13.5. So this will be my inflection point. So I will plot this again on my graph. So this point will lie, this point, that is 0.5. 0.5 must be here, close to this point, and -13 will be somewhere here. This will be 0.5 and -13.5. Okay, the last step remains, and what is that? That is the end behavior. एंड बिहेवियर मतलब कि जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, चाहे पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव साइड पे, मेरे फंक्शन का फॉर्म क्या होगी. फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, या फंक्शन किसी एसिम्प्टोट्स पे जा रहा है. सिंस यहाँ पे एसिम्प्टोट पे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई रैशनल फंक्शन नहीं है, इसके अंदर हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि फंक्शन का एंड बिहेवियर वो किस डायरेक्शन में मूव आउट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में. So for that I need my function, that is p of x is equals to 2x cube minus 3x square plus 36x plus 5. Okay, at x tends to positive infinity. ओके, सो जब हमें एंड बिहेवियर की बात करेंगे एंड उसकी बात करेंगे कि ये कहाँ जाएगा, तो इन चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं है. इफ़ेक्ट किसका होता है, जो कि आपकी हाईएस्ट पावर होती है. तो जो हाईएस्ट पावर होगी इसका कोफिशिएंट होगा, जो इसका साइन होगा उसी डायरेक्शन में मेरा एंगल, मेरा फंक्शन मूव आउट करेगा. सो बाय सब्सटीट्यूटिंग दिस p ऑफ x के अंदर अगर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी 2x क्यूब के अंदर सिर्फ सब्सटीट्यूट करती हूँ ओनली इन हाईएस्ट पावर ऑफ x, so that will be 2 into पॉजिटिव इन्फिनिटी का क्यूब, दैट विल बी पॉजिटिव. यानी कि ये जो मूव आउट करेगा मेरा फंक्शन भी पॉजिटिव
वाई डायरेक्शन में मूव करेगा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इट at x tends to negative infinity. So p of x, again I am substituting it into x cube, means 2 into minus infinity cube is always negative, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है, माइनस का साइड पे मूव कर रही हूँ तो वैल्यू भी माइनस साइन की ही मिलेगी, तो दैट विल बी नेगेटिव. सो पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू पे मूव कर रही हूँ. सो अब यहाँ पे फाइनली चाहिए, तो फाइनली दिस मीन्स कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज़ द एंड बिहेवियर, एंड नेगेटिव पे नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट इज़ द नेगेटिव इन्फिनिटी. ये पॉइंट है ना नेगेटिव एक्स, ये पॉइंट कौन सा है पॉजिटिव एक्स, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. सो माई लास्ट वर्क इज़ टू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स. सो ओवर हियर ये पॉइंट थोड़ा इधर होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना सकती, तो ये चीज़ आएगी मेरे पास, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ कर्व हो, बट यहाँ से आएगा ये, join, cut this point, then this point, then this point, and moving again towards the positive side in this direction. So the possible sketch of this function is this. ये नेगेटिव साइड पे ये सारी चीज़ें जो हमने फाइंड आउट करी उसके थ्रू मैं ये स्केच कर सकती हूँ कि मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा. बहुत अच्छा नहीं बना है बट स्टिल आपको एक नो हाउ मिल रही है कि ये कहाँ कहाँ कट डाउन कर रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स पे इसके पास मैक्सिमा मिनिमा है, कौन सा पॉइंट मेरे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसका एंड बिहेवियर क्या है. जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती थी सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैंने अपने ये ग्राफ प्लॉट डाउन कर लिया है. ओके, होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा.